स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु। Today I really want to speak about as a Christian how we need to live. तो आज हम ये बात करें कि एक मसीह होने के नाते हमें कैसे जीवन जीना And चाहिए। then also we see in the Bible, हम बाइबल में ये भी देखते हैं most of the time, you know, there is a disciple of Jesus Christ. How many people disciple? 12 disciples. यीशु कितने चेले थे? 12 चेले। And one is suicide, Judas Iscariot, you know, sent the Jesus Christ and he was selling the Jesus Christ, he died. और 12 चेलों में से एक जो चेला था उसने यीशु के साथ गलत को धोखा दिया और उसने खुद ही आत्महत्या But की। the 11 disciples, लेकिन बाकी के 11 चेले when Jesus was crucified, even to the point of that, even when Jesus was crucified, जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया तब the women never give up. Women were औरतों ने following. कभी भी यीशु का साथ नहीं छोड़ा। And then also all the disciples were scared, and when the Roman soldier arrested Jesus, all the disciples ran away. तो जब सारे के रोमन सोल्जर ने यीशु को पकड़ा, सारे के सारे चेले डर के भागते, Even the men, all the disciples ran सारे away. आदमी भागते वहां से। But Jesus, the mother Mary, Mary Magdalene, they always, all the women, some group following after लेकिन Jesus. जो औरतें यीशु के साथ चल रही थी वो अंत तक क्रूस पे चढ़ने तक उनके साथ रही। And then also when Jesus was resurrected after 3 days, who is the one who first see Jesus resurrected? और जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ 3 दिन बाद, तो सबसे पहला कौन था जिसने यीशु को देखा? That also the women. मरियम थी। So today also, this is not my topic, but I am saying women always, their men are always busy in the things of the world. तो हम ये आज का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि आदमी लोग कई बार संसारिक चीजों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन औरतें हमेशा परमेश्वर में लगी। See, when we see the Bible, women were always in the house of God, women were always in the praying of God, and when we see the Jesus ministry, women were always there. हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, बाइबल में और परमेश्वर की सेविकाओं में भी हमेशा औरतें परमेश्वर के कार्य में लगी रही। Even the first resurrection was the women who see Jesus. तो यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी पहली औरत ही थी जिसने यीशु को Why देखा। they see Jesus? क्यों उसने यीशु को Because they देखा? never give up. They're always looking for Jesus. लेकिन यीशु के मरने के बाद भी वो हमेशा उम्मीद लगाए रहती थी Early in the morning, they run to the tombs of Jesus. कि सुबह सुबह भी वो यीशु की कब्र पर And they say चली that the tomb was empty. Jesus was saying that, you know, he was resurrected. The Mary Magdalene ran to the disciple. Oh, Jesus was resurrected. He was not और here. जब मरियम थी वो वहां गई, वो देखी गुफा खुली हुई है, उसने देखा वहां पर यीशु का शरीर नहीं पड़ा, तो भागी चेलों के पास कि देखो वहां पर यीशु का शरीर नहीं है, कहाँ गया, ढूंढो। All these things you see with you, Mark, look. So the women are the one who see Jesus. आप देखें चाहे यीशु जितने भी बाइबल में चारों सुसमाचार है, यीशु के पीछे जो औरतें चल रही थी वो हमेशा अंत तक उनके साथ चलती Today थी। also in this world, you know, the fasting, the prayer, everywhere. And women will be always, you know, women population will be more than the men. अगर आप कहीं पर भी जाए जहाँ परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है, उपवास हो रहा है, सेविकाएं हो रही है, हमेशा औरतें ज्यादा होती हैं आदमियों से। Even so many ministry, every church, the women will be the first to fill up the church. तो किसी कलीसिया में भी जाए तो हमेशा औरतें ज्यादा रहती हैं और सबसे पहले पहुंचती हैं आदमियों से। Amen. We are so privileged. तो हम कितने So सौभाग्यशाली today हैं। I just want to teach about, you know, as a Christian, how we need to live every day. तो आज का विषय यह है कि मसीह होने के नाते हमें हर रोज कैसे जीवन जीना है। And what is the Christian? मसीह होने का मतलब क्या है? Christian is not that, you know, you are converted into Hindu, into Christian. No. मसीह होने का मतलब ये नहीं कि पहले आप हिंदू थे, आपने धर्म बदल लिया और अब मसीह बन गए, ऐसा नहीं। Christian is not all about you changing the Hindu and coming to, you know, no like तो that. मसीहत का मतलब Religion changing, no धर्म like बदलने that. का नहीं है। Christian means who follow Jesus Christ, who believe in Jesus तो Christ. मसीहत मतलब जो मसीह के कामों पे चलता है, जो मसीह के पीछे चलता है। So Christian means not, Christian is not a religion. तो मसीहत कोई धर्म नहीं है। Many people think that Christian is a religion. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मसीहत भी बाकी धर्मों की तरह एक धर्म है। But Christian is not religion. मसीहत कोई धर्म नहीं है। Christian is that, you see, there is a Hindu, there is so many God and goddesses. आप देखिए कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे देवी देवताएं हैं Then you choose one God to be your guru. और आप
जानते हैं and you believe that one, और हम उस पर विश्वास करते and you हैं, follow that man, उनके पीछे चलते हैं and you pray to that man, और आप उनसे प्रार्थना करते and हैं you do puja and whatever that guru say you do it. और आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। So the same thing Christian mean who among the in the world, Jesus said God so loved the world who he sent only begotten son. तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दिया। So we all are going to die, and I go back again and again because of Adam and Eve. God created you and I His image and likeness. तो परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी छवि में बनाया है, But we, because of that, they are disobedient. Everyone becomes लेकिन sinner, आदम और हव्वा के पाप करने की वजह से हम सभी पापी हो गए। and we have no way to go to heaven तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा स्वर्ग because जाने का, God is a holy God, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, and we are sinner. लेकिन और हम पापी हैं। Sinner and holy cannot come तो together. पवित्र कोई चीज और एक बुरी चीज, पापी चीज So के साथ में आ if we सकती है। want to see God, we need to be holy. तो इसका मतलब हमें परमेश्वर के पास जाना है, And हमें if we need पवित्र to होने go की to जरूरत है। heaven, we need to be holy. तो हम पवित्र कैसे बनेंगे? And if we need to see Jesus, if we need to go to God, and we need to become, and we need to be the disciple of Him. तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के पहले हमको चेला बनना जरूरी है। So that is why God loved us so much. That is why He sent only begotten. तो हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को दुनिया में भेज दिया। And then the Bible says, whoever तो believes, बाइबल कहती है जो भी उन पे विश्वास करेगा they have the salvation. उसे उद्धार मिलेगा, They have believed. उसे विश्वास है, That is the Christian वो है मसीह who believe in Jesus जो Christ, यीशु में विश्वास who करता है, took Jesus as a guru, जिसने यीशु को अपना गुरु बना लिया। and whatever Jesus teaching in the और Bible. जो यीशु जो भी बाइबल में सिखा रहा है, Today we read Bible. आज हम बाइबल पढ़ते This हैं, is all about nobody teaching. ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करी और लिख दिया, This is all about God's word. ये सिर्फ परमेश्वर का वचन है, God is the one who gives. परमेश्वर ने दिया। Last time I told you, if you want to see God, we cannot see God. जैसे पास्टर ने पिछले बताया कि अगर वो परमेश्वर को देखते तो आप देख नहीं सकते, God is almighty. क्योंकि परमेश्वर इतने He महान is बड़े हैं, powerful. बहुत सामर्थ्य If है। God come to you, you see, you will die. अगर परमेश्वर आपके सामने आ जाए, आपने देख लिया और मर He is जाए, the creator of the उसने universe. ब्रह्मांड की रचना करी है, He is the source of everything. वो हर एक चीज का स्रोत He is है, the powerful and mighty. वो सामर्थ्य से भरे हुए So परमेश्वर। how we can see God? और हम इंसान हम कैसे उनके In the सामने Old खड़े हो सकते Testament हैं? time, God come like a sound voice. पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी आवाज के द्वारा लोगों से बात And करते as थे, a God come like an angel. या कभी स्वर्गदूत आते थे, And God sent angel. या कभी स्वर्गदूतों को भेजते Because थे, those days there is no Bible. क्योंकि उस समय बाइबल नहीं होती थी। And the spoken word. तो परमेश्वर का सिर्फ वचन सुनाई देता था, But that spoken word become flesh. The Bible लेकिन वो says. वचन परमेश्वर का देह के रूप में यीशु के रूप में Verse आया। 14. यूहन्ना के सुसमाचार में 14 So में now how you see Jesus? कि आज आप यीशु को कैसे देखते Now how you see God? हैं? आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? I see every day God. पास्टर कह रही मैं तो हर रोज देखती हूँ, Every morning, every हर afternoon, every day. हर रोज। How? कैसे? Through the word of God. परमेश्वर के वचन के We द्वारा। see God in this हम word. परमेश्वर को परमेश्वर के वचन में So देखते हैं। now you can see God in this word. आप परमेश्वर को उनके वचन में देखते हैं। Bible says the word of God is God Himself. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। Because you cannot see the personal God, you know, the not powerful, mighty cannot come. क्योंकि परमेश्वर को देह के रूप में आप नहीं देख सकते, Because He's the mighty, He's the क्योंकि वो इतने power. सामर्थ्य से बड़े और बड़े हैं। So He wants to communicate us, He wants to see us through His लेकिन word. वो हमसे रोज बात करना चाहते हैं, तो वो हमसे कैसे बात करते हैं? So we इसके द्वारा। believe in Jesus तो Christ जो भी यीशु में विश्वास as करते हैं, a personal Savior, अपने उद्धारकर्ता के not रूप a में, religion practice, कोई धर्म गुरु की तरह नहीं, not a law follow. कोई कानून के पीछे चलता हुआ नहीं, But you cannot see God, लेकिन आप परमेश्वर को देख नहीं but सकते, by faith you believe in सिर्फ Jesus. विश्वास के द्वारा उन्हें अपना सकते हैं, And you accepted Jesus as your guru. और अपने गुरु के रूप में आप उन्हें अपना And you accepted Jesus as your God. अपने परमेश्वर के रूप में। That means that is the all Christian. वही का उसी का मतलब है मसीहत। And Christian is not a religion. तो मसीहत कोई धर्म नहीं Christian है, means God and you. मसीहत मतलब परमेश्वर और आप, Personal relationship और with आपका God. जो व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध है उसे मसीहत बताया है। You and God personal relationship. आपका और परमेश्वर का क्या संबंध है वो See, मसीहत I है। believe in Jesus. परमेश्वर पास्टर यीशु में विश्वास करते हैं, I cannot take you all the members of Rehoboth Church who come to church into heaven. लेकिन ये अपने विश्वास के द्वारा रेहोबोथ चर्च के सारे मेंबर्स को हम स्वर्ग में ले जा सकते। I am so the way ये सिर्फ रास्ता दिखा सकते to हैं go to heaven. कि स्वर्ग का रास्ता I ये am है। revealed God. वो प्रकाशित कर रही है परमेश्वर का वचन आपको, And I am teaching about God. वो यीशु के बारे में कुछ सिखा रही है, But to go to heaven लेकिन स्वर्ग जाने के लिए is your duty तो इनका विश्वास नहीं, आपका काम है कि आप विश्वास करें personally. व्यक्तिगत रूप से। Because of pastor, everyone will not go to heaven. पास्टर का विश्वास से सबके साथ स्वर्ग नहीं चले I जाएंगे, also need to
मानना I है need to believe in तो उसके God. इनको भी विश्वास करने की My जरूरत personal है। Savior. अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप I में may be a good teacher. हो सकता है अच्छा पढ़ाने I वाली may हो, be so much powerful preacher. हो सकता है अच्छा प्रचार भी करती हो, And through me, many will be believing in और हो Christ. सकता है इनके द्वारा हजारों लोग But विश्वास if भी I didn't करें, believe in Christ, लेकिन अगर खुद ही विश्वास नहीं I will करेंगे never go to heaven. इस स्वर्ग नहीं जाएंगे। So to go to heaven, तो स्वर्ग जाने के लिए personal relationship, व्यक्तिगत संबंध बनाना जरूरी है। each one of them हर एक किसी को will believe in Jesus विश्वास करना जरूरी है यीशु पे, and accept that as a guru, अपने गुरु के रूप में accept अपनाना that as जरूरी है, a son, accept that as a God, अपने प्रभु के रूप में अपनाना and you जरूरी है। believe that Jesus died on the cross और ये for you, विश्वास करना जरूरी है कि यीशु क्रूस पर आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए, and Jesus rose again, और यीशु तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ and you होगा, believe that He will come again. और आप ये विश्वास करें कि वो दोबारा जरूर आएंगे। So that person who believe in his heart तो जो है इंसान ये विश्वास and करता है follow the gospel, और विश्वास परमेश्वर के follow वचन the पर करता teaching है of your और Guru वचन पर Jesus चलता Christ, है, that will go to heaven. वही इंसान स्वर्ग If जाएगा। my father, my mother, they may be good preacher, a good believer, हो सकता है कि मम्मी पापा अच्छे विश्वासी हो, but all the children didn't believe in Jesus, लेकिन अगर उनके सारे बच्चों ने विश्वास नहीं किया they will यीशु not में, go to heaven. तो स्वर्ग में जाएंगे, Because Christian is not a religion. क्योंकि मसीहत कोई धर्म नहीं Christian है। is not a following. If I follow, everyone will follow. No. ऐसा नहीं कि 5 साल फॉलो कर रहे तो हम इनके पीछे चल रहे तो हम भी विश्वासी हो But गए, ऐसा नहीं each है। one of us हर एक किसी को विश्वास करने की will जरूरत है, believe in Jesus. जो विश्वास करेगा That is यीशु। why the Bible said, believe Jesus इसलिए बाइबल बताती है विश्वास करो यीशु and में walk out for your और salvation अपने उद्धार के लिए काम करो and tell to the people और लोगों को बताओ that He is God. कि वो प्रभु है। So everyone has personal believing in तो Jesus, हर किसी को व्यक्तिगत रूप से अपनाना जरूरी है and we need to walk out for to go to heaven. और हमें स्वर्ग जाने के लिए भी कार्य करना And है। how we need to walk out? कैसे क्या कार्य करना We है? need to obey His teaching. हमें वचन पर चलना We है, need to believe Him. हमें यीशु के वचन पे We चलना है। need to teach and we need to follow whatever He is teaching. जो भी उन्होंने सिखाया उस पर विश्वास करके चलना God जरूरी never है। teach us wrong thing. परमेश्वर हमें कुछ भी गलत नहीं सिखाते। Genesis to Revelation. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक I never see God teach us to go to कहीं heaven. पर भी हमने कि परमेश्वर नरक जाने का रास्ता बता रहे हैं। Everything God teaching here. वो सिर्फ अच्छी बातें बता रहे How हैं to live, कि कैसे जीना how है, to grow, कैसे बढ़ना है, how to be good, कैसे अच्छा बनना how to be है, successful, कैसे सफलता how पानी to है, be rich, कैसे अमीर बनना how है, to be a conqueror. कैसे लोगों पर राज करना है। And He teaches everything. वो अच्छी चीज सिखा रहे But हैं। many people didn't read His लेकिन Bible. लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। To become rich, to become powerful, they're looking the knowledge, the wisdom, the science, and colleges and everywhere. They're looking for वो that. अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए अलग-अलग मोटिवेशनल स्पीकर के पास जा रहे हैं, अलग किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो किताब पढ़नी चाहिए And वो नहीं people पढ़ते। looking for healing in doctors and medicine. और चंगाई पाने के लिए वो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, पैसा खर्च रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं But still people die. और उसके बाद भी मर रहे हैं। But God is the one who created everything. लेकिन परमेश्वर ही है जिन्होंने सब He कुछ is the बनाया। one who created you. उन्होंने आपको बनाया, He know where you are going. उन्हें पता है आप कहाँ जा रहे हैं, He know where is you are going to die. उन्हें पता है आप कहाँ मरने वाले How हैं, long you need to live. आप कितने जिंदगी जी And रहे He हैं। know everything before you come. He created everything for your sufficiency and everything. Not to hunger, not to be thirsty, not to be sick, not to be attacked. और आपके पैदा होने से पहले ही उन्होंने हर चीज का बंदोबस्त कर दिया आपके लिए। See God in the when we read in Genesis of the Bible. जब उत्पत्ति के उत्पत्ति में पहले वचन See, पढ़ते in the हैं, beginning God created everything. शुरुआत में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया The last He created human और beings. सात और छठे दिन क्या बनाया, मनुष्य को If He बनाया। created me first, अगर उन्होंने पहले मनुष्य को बनाया no होता, earth, no heaven, nothing tree, no तब तक vegetable, पेड़ nothing, पौधे जानवर बने ही नहीं होते, then how we will तो survive? इंसान कैसे जिंदा रहते, Then where we will live? कहाँ रहते। But before God created human beings, लेकिन परमेश्वर ने छठे दिन इंसान को बनाने से पहले He created everything. हर चीज का निर्माण किया। That's what the Bible says in the beginning God created heaven and earth. इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती का निर्माण The किया। Bible says in the beginning that there is a darkness covering the कि cloud. पहले सिर्फ अंधेरा था सारी जगह पर। Then God separated dark and lightness. परमेश्वर ने अंधेरे और रोशनी को अलग अलग किया Then God separated day and night. और दिन और रात को अलग किया। And the water was covering. और पानी था सब जगह। Then God separated the waters and the river, the land. परमेश्वर ने पानी और धरती को अलग किया And then God created all the vegetables, animals, everything. और सारे पेड़ पौधों को अलग किया। Then in the verse 21, verse 127 in Genesis, the Bible said, let us make our own image और and उत्पत्ति के likeness. पहले अध्याय 27 से वचन में लिखा, चलो हम मिलकर इंसान को बनाए अपनी छवि में। So everything He created, getting ready, and He
created you and I and sending into this और हर world. एक चीज को तैयार करो, उसके बाद उन्होंने इंसानों के लिए तैयार किया। The same way before you created, God created how to live, how to be successful, how to be riches, how to be more than a conqueror, mighty, powerful. For that He has created everything ready and you are coming to this और world. ऐसे ही आपकी रचना से पहले भी परमेश्वर ने आपके लिए हर एक चीज का निर्माण किया, आपके घर का, परिवार का, किस किस चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, हर एक चीज। I want to become a pastor, that's why I become a pastor. No. ऐसा नहीं कि पास्टर को पास्टर बनना था इसलिए बनी। Today I will pretend myself preaching here. This is because we want. No. ऐसा नहीं है जब मैं प्रचार कर रहे तो हम चाहते थे ऐसा करना, ऐसा नहीं है। Before the foundation of the world, परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया उससे before I पहले, come into this world, पास्टर के जीवन में आने से पहले, before preaching come into this world, मेरा जन्म लेने से पहले, God knows that in this very moment, in this day, we will be here. तो परमेश्वर को पता था कि 11 तारीख को ऐसे हम यहाँ खड़े हुए प्रचार कर रहे हैं। And God knows that in this very moment, that you will be here today. और परमेश्वर को पता था कि इस समय, इस घड़ी आप यहाँ बैठे होंगे। Sometimes many other Friday you are not here. Today you are here. God has assigned. कई बार ऐसा होता है कि शुक्रवार को आप नहीं आते, लेकिन आज आप आए हैं, Today my परमेश्वर sister, ऐसा my है। mother's first time coming here. God has assigned all that you want to come. तो जैसे आज मैं दीदी और मेरी बहन यहाँ पर आई है, तो परमेश्वर ने पहले से ही सोचा था कि आप So यहाँ होंगे। everything under the heaven and earth, everything go by God's तो plan. स्वर्ग के नीचे हर एक चीज परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही होती है। God has a plan that today you will be here. That is why He put in your heart to go to church. तो आज यहाँ पे कलीसिया का यहाँ पे सभा थी, तो परमेश्वर ने आपके मन में डाला कि आपने यहाँ पर पहुँचना है। This is not that you want to come today. No. ऐसा नहीं कि आप आना चाहते थे इसलिए आप आए। Before you come to this world, He has everything इस planned. दुनिया में आने से पहले ही परमेश्वर को पता कि इस तारीख को आपको यहाँ So, कलीसिया में आना है। each day we are doing everything He has planned. तो हर रोज जो हम करते हैं परमेश्वर ने पहले से ही सोच रखा है। Suddenly He didn't come. तो Suddenly He did not ऐसा नहीं come. कि अचानक से उन्होंने आज ही सोचा कि इसको भेज देते हैं, ऐसा नहीं Suddenly है। He did not plan that these two child will be here today. उन्होंने कहा कि अच्छा आज 11 तारीख को परमेश्वर ने सोचा कि इन दोनों बच्चों को कलीसिया में भेज These देते हैं, two ऐसा नहीं है। child before coming, so God has created that today they will be here. एक बच्चों के पैदा होने से पहले परमेश्वर को पता था कि आज की तारीख को इस समय पर And ये यहाँ होंगे। today I am preaching about what is a Christian. That means God has already prepared for this message today. तो आज जैसे पास्टर बता रहे हैं आज का विषय कि मसीह को कैसे जीना चाहिए, इस विषय के बारे में परमेश्वर ने पहले ही सोच So लिया था। everything work by His तो plan. हर एक चीज पहले से ही This चल रही is है। not by your plan. ये हमारी सोच से नहीं चल रहा, This is God's plan. परमेश्वर का वचन है। And God planned me that before the foundation of the world that I will go to Delhi and I will be pastoring and I will be standing here. I will lead the people and I'll be here today. तो ये परमेश्वर की योजना थी कि ये मणिपुर रहते हैं, दिल्ली आएंगी, किस साल में आएंगी, परमेश्वर का वचन बांटेंगी, ये सब परमेश्वर ने पहले से ही सोच So रखा है। everything under the heaven and earth, everything planned. तो स्वर्ग के नीचे हर एक चीज परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाई है। And that plan nobody cannot और destroy. ये योजना परमेश्वर की कोई भी खराब नहीं कर That सकता, plan Satan cannot destroy. शैतान भी खराब नहीं कर सकता। So before I come into this world, God has already signed that each day what I need to do. तो पास्टर के जीवन में आने से पहले ही परमेश्वर को पता है कि हर रोज वो एक दिन क्या क्या करने वाली है। So that is how you are not come by mistake. तो आज हम गलती से या इत्तेफाक से नहीं पहुंचे, You are not come by accident. कोई इत्तेफाक से नहीं आए हैं। And you are not believe in Jesus Christ is not mistake. और अगर आप यीशु में विश्वास कर रहे हैं तो ये भी कोई गलती नहीं है, And that is the God's plan. क्योंकि परमेश्वर की मर्जी God है has आपके लिए। already planned before you were born. आपके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने सोच लिया, Before you come into this आप world. इस दुनिया में आए उससे पहले, And everything go और like हर रोज उसके that. अनुसार So चल the रही है। Christian men who believe in Jesus तो Christ. मसीह वही है जो यीशु में It's विश्वास not that है। everyone go to church. ऐसा नहीं कि हर कोई चर्च जाता And है, it's not that everyone knows Jesus. और ऐसा भी नहीं कि हर एक यीशु में विश्वास You करता है। see, everyone knows Jesus. हर किसी को पता तो है यीशु का नाम। Hindu, Muslim, everyone हिंदू knows. मुस्लिम कोई पता है कि यीशु नाम है। Okay, मेरा दीदी, आप पहले इस सर्च आने के बाद यीशु मसीह को जानता है ना, आपका नाम जानता है ना? चर्च में आने से पहले आप यीशु के नाम को जानते थे। See, everyone, the whole world know who is Jesus. पूरी दुनिया को यीशु का नाम तो पता है, But everyone will not go to heaven. लेकिन फिर भी हर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। And everyone know that, you know, in Hindi यीशु मसीह. तो सब लोग इसे मालूम होता है आप यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह पीछे चलते हैं और आप क्रिश्चियन हो, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो कोई इंसान भी हो, गांव में हो, सिटी में हो, कोई भी हो, सब यीशु मसीह का नाम मालूम है, लेकिन सारी चीज यीशु मसीह को विश्वास नहीं है। That is the thing. So Christian means everyone who know the name of Jesus, they are not the Christian. तो हर किसी को यीशु का नाम पता है, वो सारे मसीह नहीं है। But Christian means
who believe in Jesus Christ, तो मसीह वो है जो यीशु में विश्वास who है, believe that Jesus is the Guru. जो जानता है कि यीशु गुरु है उनका, I will die for कि Jesus. मैं यीशु के लिए मरने को भी I तैयार will हूँ, believe in मैं Jesus. विश्वास करता I हूँ, will follow Him. मैं उसके पीछे चलूंगा। That is the Christian. वो ही मसीह है। Everyone go to church. Many people didn't believe. बहुत सारे लोग चर्च भी जाते हैं तब भी विश्वास नहीं करते। People come for just for prayer. वो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, वापस चले जाते हैं। वो सोचते चंगाई मिल जाएगी। Okay, you pray, you got healing, you go to heaven. No. और ऐसा भी नहीं कि आप आए, आपके लिए प्रार्थना को चंगाई मिल गई तो आप सब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। Healing will never take you to heaven. चंगाई आपको उद्धार नहीं देगी। We got healing why? हमें चंगाई क्यों मिली? That is the blessing of वो God. सिर्फ परमेश्वर का आशीष है। You are receiving, you pray, every answer was done, God answered our prayer. Why? परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों देते हैं? Because He is a God, He is our Father. क्योंकि वो हमारे पिता हैं। But the person who heal, who receive miracle, they will not never go to heaven. पर ऐसा नहीं कि जिसके जीवन में चमत्कार हुआ है वो सब स्वर्ग That जाएंगे। is the receiving blessing. वो सिर्फ परमेश्वर के आशीष को पाना है। But to go to heaven, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए they need to believe in Jesus. उन्हें यीशु में विश्वास करना जरूरी है। And okay, I have a paralyzed, I got healed, and that will never go to ऐसा heaven. नहीं कि मेरे को लकवे का रोग है, प्रार्थना करी और लकवे का रोग ठीक हो गया तो मैं Or स्वर्ग I have जाऊंगा। so many problems, I have demons cast out, and I'm free. That will never ये go to किसी के heaven. जीवन में बहुत सारी बुरी शक्तियां हैं, वो बाहर निकल गई तो स्वर्ग चला जाएगा, ऐसा नहीं। All these things are God blessing His power. ये सिर्फ परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा आशीष दे रहे हैं। And He doesn't want to suffer us. वो नहीं चाहते कि हम परेशानियों में। But the person who needs to go, and what is the Christian? The person who called is Christian is whether he heal or not, whether he deliver or not, whether he is, the person who believe in Jesus Christ, that person is the Christian. तो मसीह कौन है कि जिसको जीवन में चंगाई मिले या ना मिले, जिसको जीवन में परेशानी का हल मिले ना मिले, गरीबी रहे या अमीरी रहे, दोनों परिस्थितियों में जब वो यीशु में विश्वास करता है वो इंसान। And the person who believe, the person who faith and trust, that is the Christian. जो इंसान विश्वास अंत तक करता रहेगा हर एक परिस्थिति में वही स्वर्ग जाएगा, That is the Christian. वही So मसीह। you should know that now. तो आपको पता होना चाहिए। Because many people misunderstanding about Christianity. बहुत सारे लोगों को मसीहत का अर्थ ही नहीं पता। They thought that all the people go to church, they will be Christian. उनको लगता है जो चर्च जा रहा है ना वो सारे के सारे ही क्रिश्चियन हैं। That when you read in let us count the book of Acts. Last time we read, yes. हम खोले प्रेरितों के काम Book of Acts chapter 11, verse 26. Book प्रेरितों of के काम Acts. 11वां अध्याय 26वां। Christian means who follow Jesus and who believe in Jesus, who trust in तो Jesus, मसीहत का मतलब वो लोग जो परमेश्वर में यीशु मसीह में विश्वास and who obey what Jesus teaching, और जो यीशु के चेले हैं उनकी वचन पे चलते who हैं। obey the word of God. Genesis. 181 पेज नंबर, Oh, हिंदी no. बाइबल 181 पेज नंबर। So and then who live like God and who live like the character, the attitude, the behavior that is different from the world, and that is the Christian. और जिनका चरित्र और व्यवहार लोगों से अलग है और वो मसीह के जैसा व्यवहार करने की The कोशिश, person who is not doing wrong thing, जो इंसान गलत काम the नहीं करते, person who love people, जो लोगों से प्रेम the करते हैं, person who forgive, जो माफ करते हैं, the person who didn't have difference here, rich, poor, he loved everyone, जो अमीर गरीबी में फर्क नहीं करते, and who obey, who is his character, his behavior like God. और जिनका व्यवहार यीशु मसीह के जैसा होता है That is the Christian. वो ही मसीह है। So what the Bible say? हम देखते हैं प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 26वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। Amen. So in Christianity, you will see in the book of Acts only the name about Christianity. अगर आप बाइबल में देखें तो आपको सिर्फ एक प्रेरितों के काम इसी यहीं पर मसीही शब्द There नजर is आएगा no other books. और किसी किताब में नहीं। Genesis to even the Gospel of John, Mark, Luke, and everything for gospel also no mention. अगर आप इससे पहले सुसमाचार करके पुराने नियम में भी देखें कहीं पर एक मसीही शब्द नहीं। But now when the disciples, they were in the Antioch, लेकिन जब अंत्योक के अंदर जो चेले थे and they were with the people, वो लोगों के साथ थे, they were completely different from the things of the world. उनका व्यवहार उनका चरित्र बाकी के The लोगों से बहुत disciples अलग were completely different. They go to the market, they go to living in the place. वो लोगों के साथ रह तो रहे थे लेकिन उनका व्यवहार अलग था, They are completely different. वो बहुत अलग थे। They are so into the people, everyone they love, वो हर किसी से प्रेम करते थे, helping one another, लोगों की मदद करते थे kindness, और दया दिखाते थे और विनम्र थे, self-control. अपने पर विनती Live a करते holy थे, life. एक पवित्र जीवन No जीते थे, hatred, envy, से jealousy, no नफरत नहीं करते थे witchcraft, और काला जादू नहीं करते थे and they were completely different. और
देखा, and they are not saying that I'm a Christian. उन्होंने अपने आप नहीं बोला कि हम मसीही हैं, But the disciples, the other people said, oh, they are the Christian. तो उन्होंने कहा अच्छा ये मसीह के चेले मतलब मसीही हैं, They are the following of Jesus Christ. उन्होंने खुद बोला कि मसीह के They चेले are हैं, the believer of Jesus Christ. यीशु के विश्वासी हैं। From there only the Christianity comes. वहीं से मसीही शब्द शुरू So हुआ। the Christian means who follow Jesus. तो Who believe मसीही Jesus. कौन है जो मसीह के पीछे Who चलता है, accepted Jesus is the जिन्होंने Guru. यीशु को अपना गुरु अपना लिया, Who accepted Jesus is a personal Savior. अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपना Who लिया, believed that I will die for him, I will rise again for him. जिसने ये विश्वास किया कि मैं उसके लिए जीऊंगा और And who मरूंगा भी, believed that Jesus will die on the cross. और जिसने ये विश्वास की क्रूस पर And who believed that यीशु Jesus मरा was raised और on the तीसरे cross. दिन जिंदा हुआ। Many people didn't believe that Jesus was raised up. बहुत सारे लोग ये तो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे मरे, लेकिन ये नहीं कि वो जिंदा भी हुए। Nobody believed, no, many people didn't बहुत सारे believe लोग that. विश्वास नहीं करते। Many people believe that Jesus is not God. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह इंसान थे, वो आए और मर गए, Many पर people यीशु believe नहीं that थे। Jesus is the sons of Mary and Joseph. लोग ये विश्वास करते हैं कि मरियम और यूसुफ का बेटे थे, इंसान When you थे। go to Israel, many people didn't believe that Jesus is God. इजराइल के अंदर भी आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यीशु को एक इंसान के रूप में समझते They हैं। believe that Jesus is the son of Joseph and वो Mary. कहते हैं ये यूसुफ और मरियम का बेटा था। And many people, Muslim people, believe that Jesus is a prophet, just like Muhammad. और जो इस्लाम में जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह बाकी भविष्यवक्ताओं की तरह Even the वो भी Hindu भविष्यवक्ता थे। people also didn't believe that Jesus only God. They didn't believe. और हिंदू लोग भी ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर थे। But they have believed that Jesus was a kind of God. वो कहते हैं ठीक है, जैसे बाकी भगवान है वो भी भगवान थे, So they didn't believe that only He is God. सिर्फ वो ही परमेश्वर है, ये So लोग विश्वास नहीं everyone करते। has a different, thought, different belief. तो हर किसी का अलग अलग सोच और विश्वास है, Those are not the Christian. तो वो लोग मसीह नहीं है। But the Bible says who the Christian means who believe and who follow His commandment and who obey the commandment of God and who follow the word of God and who live like God and who walk like God. That is the Christian. तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि मसीही वो लोग हैं जो मसीह के जैसा व्यवहार करते हैं, चरित्र करते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं। And I say once again, और एक और चीज, Christian is not religion. मसीहत एक धर्म नहीं है, And Christian is not follow the law and religion practice. और कोई कानून या कोई रीति रिवाज का पीछे पालन करना भी मसीहत नहीं है। Christian means you and God personal relationship. मसीहत मतलब आपका और परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध, And who follow Jesus. जो यीशु के पीछे चलता है And who follow the teaching of God. और जो यीशु के वचन में चलता है, That is the Christian. वो मसीह है। And then also another thing. और एक और चीज, If we are a Christian, अगर हम मसीह हैं, what we need to do? हमें क्या करना चाहिए? If you or say, I say, okay, I believe in Jesus, जैसे आप कहते हैं ठीक है, मैं यीशु में विश्वास करती and हूँ Jesus is my Guru. और यीशु मेरा गुरु है, That is not the end of our life. तो इसका मतलब ये नहीं हमने बोल दिया वो हमारे गुरु और हम बैठ जाए सोफे पे सब खत्म। If you are a believer of Jesus, अगर हम विश्वासी हैं, if you are the Christian, अगर हम मसीही हैं, then God wants us to do something. तो परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम कुछ करें। If you are a Hindu, then also there is you need to do something. तो हिंदुओं को भी कुछ करना होता है। If you are Hindu, then you need to follow all the ritual and follow and law and तो regulation. हिंदू लोग भी रोज के रोज रीति रिवाज, धूप बत्ती, अलग अलग काम करते हैं, So you follow the teaching. तो वो रीति रिवाज को फॉलो करते You say हैं। I'm a Hindu and you sit in the house, nothing do. They will not say that you are not following. तो अगर आप एक हिंदू होकर भी आप घर में बैठे रहेंगे और आप उनके काम वचन नहीं पढ़ेंगे तो भी आप हिंदू नहीं हैं। But the Bible also same way. लेकिन बाइबल क्या बताती है? But God is more powerful than that, all those things. परमेश्वर इन सब चीजों से So बहुत if you ऊपर है। say that if I say that I'm a Christian, अगर मैं ही कहती हूँ कि मैं एक मसीही हूँ, then first believe in Christ. तो पहली चीज क्या है? विश्वास। Second, दूसरी चीज, I need to follow and I need to read the Bible. मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत है। Okay, Sister Anita was saying I don't know how to read Bible. ये सिस्टर इनके कहते हैं मुझे बाइबल पढ़नी नहीं आती, And many people, aunties say I don't know how to read बहुत Bible. सारे लोग कहते हैं बाइबल पढ़नी नहीं आती, But now you're reading Bible. लेकिन आप अभी भी बाइबल ही पढ़ रहे हैं। How? कैसे? You come to the church, आप चर्च आ रहे हैं, listening the word of वचन God. सुन रहे हैं, Now the preachers were sharing the gospel. प्रचारक बता रहे हैं परमेश्वर का वचन So आपको, God is teaching through someone. परमेश्वर किसी के द्वारा आपको सिखा रहे हैं। And so if you Christian means and if you know how to read the Bible, अगर आपको बाइबल पढ़नी भी आती है, and the Bible says the second you need to follow the reading the Bible every day. तो हर रोज आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। Why we need to read Bible? क्यों रोज बाइबल पढ़ने की Hear जरूरत है? everything. क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। How to live.
कैसे जीना है, how to go, कैसे चलना how है, to wake up, कैसे सुबह उठना how है, to grow in the Lord. कैसे परमेश्वर में Where बढ़ना is the है, heaven? कहाँ स्वर्ग है, Where is the hell? कहाँ नरक Who है, is the Satan? कौन शैतान है, Everything in हर this एक book चीज इस किताब में लिखी हुई है, written here. हर एक चीज लिखी How many, where is we know the demon Satan? हमें कहाँ से शैतान शब्द पता लगा, From this book. बाइबल से, How we know God? कहाँ से मैं प्रभु के बारे में From this book. बाइबल से, How we know healing? कैसे मैं चंगाई के The बारे में Bible says the word of God. परमेश्वर का वचन, God's word परमेश्वर का वचन is the medicine. एक दवाई है, You eat, you will get आप इसे healing. खाते हैं और चंगाई पा लेते हैं। The Bible says God sent His word परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपना वचन भेजा to heal us. ताकि हमें चंगाई You know, today I'm telling everything here in Bible. आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर का वचन The सुनने Bible के बारे says में। the word of God is the healing. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चंगाई The word of God is the medicine. वो दवाई के रूप The में काम word of करता God है। is the lamp. वो एक रोशनी की तरह है। And the word of God is the, you know, in the now we didn't have lamp. When you go to the villages, they have no electricity. तो गांव के अंदर लालटेन होती है जिसके अंदर This रोशनी आती है। time only with the, we are developed, we got the light and electric. अब तो विज्ञान की वजह से लालटेन नहीं दिखती है, स्ट्रीट लाइट दिखती है। Before there is no light. पहले लाइट नहीं थी, लालटेन When I जलती थी। was like this time, पासा जब छोटी थी बच्चों की when I तरह, was in living down, जब मैं गांव में रहती there थी is no electricity. तो वहाँ पर ट्यूबलाइट बल्ब नहीं होते थे। Electricity come recently. लेकिन बिजली तो अभी अभी आई है कुछ सालों पहले। Before electricity, पहले there is a light in the house. लालटेन होती थी, There is a fire. आग जलाते थे And after the fire, और आग जलाने के बाद kerosene come, petrol come. केरोसिन शुरू हुआ, फिर पेट्रोल Then शुरू हुआ। my mother, what did they used to उनकी do? मम्मी क्या करती थी? In the kerosene, there is a, pauta. Inside the pauta, the kerosene putting. Then there is a thread, they put it like this. Then the light used to come. तो वो कपड़े के ऊपर हाँ। बस वो केरोसिन डालते थे, उसमें धागा बांधते थे और आपको मालूम है ना? आपको पता है हाँ हम इसी था वो पढ़ाई करता था रात में तो पौधा में इधर पौधा है केरोसिन डालेंगे तो इसे कपड़ा ना इसे करेंगे तो थोड़ा पीनी से इसे करेंगे तो लाइट जलाएंगे लाइट थोड़ा सोने इतना रेड लाएंगे तो हम लोग अंधेरा में ना बहुत लाइट होते हैं so the Bible say that we are no the word of God is the light. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लालटेन भी है और रोशनी भी है। So after that, after that, Kauta, Lantin come. Lantin is later. So there is a Kauta after the Lantin come. कोटा। Yeah, Kauta. We call it Kauta, na? So after that Lantin, there is a candle come. उसके बाद फिर मोमबत्तियाँ शुरू हुई। So after that, this electricity. उसके बाद फिर बिजली शुरू हुई। All these things God giving ये wisdom, सब चीजों के लिए परमेश्वर ने समझ और बुद्धि दी इंसानों knowledge, को how to make कि light, कैसे बिजली how बनानी to है, get light. कैसे रोशनी लानी है। Light come from water, the force of the क्या water. देखते हैं कि पानी से भी बिजली बनती है। And light come from where is the electricity come? कहाँ से बिजली शुरू हुई? Electricity come from the waterfall. पानी जब ऊपर से गिरता है और वो सारी एनर्जी ऊर्जा इकट्ठी होती है And उससे electric come from the energy of the sunlight. और फिर उसके बाद वो कहाँ से आती है? सूरज से आती है That is how we get it. और वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है All these things come from God. और हर एक चीज आती तो So परमेश्वर the से ही Bible है। says the word of God परमेश्वर का वचन is the electricity for us. वो हमारे लिए बिजली के समान है। So without the having the word of God, अगर परमेश्वर का वचन मतलब बिजली नहीं है you are walking in the तो आप darkness. अंधेरे में ही चलते रहे। That's why the Bible says read the word of God इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पढ़ो वचन को put in your heart. और अपने जीवन में उतारो। And if you don't know how to read the word of अगर आपको God, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना then नहीं आता today I am preaching and not keeping in your heart तो आज जब पास्टर प्रचार कर रही है बता रही है अपने दिल में उतारो, and written in your heart अपने दिल में खुद लिख and लो put into और practice. अपने जीवन में उतार लो Then you will see you will be a blessing. तो आप एक आशीष बन जाए। So the Bible said if you know that you are the Christian, read the Bible every day. तो अगर आपको पता है आप चाहते हो कि आप एक मसीह हो तो रोज बाइबल पढ़ें। So how many people read Bible every day? कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाएं। No, that's not. See, that is the thing. God wants us to read the Bible every परमेश्वर day. यही चाहते हैं कि हम हर रोज वचन पढ़ें। When is that? Let us come to Psalm 1. हम खोले भजन संहिता पहला अध्याय। When you read the meditate the word of God day and night. परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाते हो हर रोज। Yes. Okay, Preeti, you read Psalm 1. भजन संहिता पहला अध्याय हिंदी बाइबल 654। Yes, you read the whole book now. भजन संहिता पहला अध्याय। क्या ही
धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। 4 दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। Amen. So the Bible says, if you are a Christian, verse 2, his delight will be in the law of the book. तो क्या लिखा है दूसरे वचन के अंदर, जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। So the Christian being who meditate the word of God day and तो night. मसीही वही है जो परमेश्वर के वचन पे ध्यान So the लगाता है। Bible says, meditate and delight in the law of the book. तो हर रोज परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता Delight है। in the law. What is the law? परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? Our law is this. ये व्यवस्था है परमेश्वर। The person who meditate day and night. जो पर इंसान हर रोज इस पे ध्यान लगाता So है। if you are a Christian, you will need to meditate the word of God day and तो night. अगर आप एक मसीही हैं तो परमेश्वर के वचन में आपको हर रोज ध्यान लगाना चाहिए। And then the Bible says, and they will be planted by the person who meditate day and night reading the Bible. There will be a tree planted by the तो riverside. क्या लिखा है कि वो मनुष्य एक वृक्ष के समान है। When you read the Bible, क्या बाइबल पढ़ते हैं day and night, हर रोज, just God is giving the example. परमेश्वर क्या उदाहरण दे रहे हैं? When you go to the river, अगर आप एक नदी के पास जाएं, river bank. नदी के पास, Yes, Delhi is, I didn't see the river bank. दिल्ली में ज्यादा नदियां, But when you go to the Muna bank, अगर आप यमुना बैंक and जाएं, the riverside there is so many नदी trees. के पास पेड़ उगे हुए हैं, But the tree grow to the outskirts, in the लेकिन top, in the rock. जो पेड़ नदी के पास नहीं उगा है वो सूख जाता है। And when the sun heat comes, that will जब down. धूप आती है तो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। But the river bank growing, when the sun heat comes, when the storm comes, when the tsunami comes, that tree will never लेकिन die. नदी के पास जो पेड़ लगाया वो सूखा नहीं पड़ता, चाहे कितनी धूप आए वो हमेशा फलता है। And inside the water, fertile, everything will produce from क्योंकि the जो earth. पानी के अंदर और मिट्टी के अंदर जो भी अच्छे न्यूट्रिशन है वो भी उसको मिलते हैं। But the tree that grow in the pond, in the upstairs, in the terrace, लेकिन जो छत के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर लगाया I जाता है, see so many terrace tree growing. लेकिन छत के ऊपर ही बहुत सारे पेड़ आजकल उग जाते हैं, They cannot grow पर further. वो ज्यादा बड़े नहीं हो When सकते, the sun heat comes, क्योंकि जब धूप they आएगी used to die खत्म हो जाएगी, because there is no source to क्योंकि produce. जड़ें ही नहीं है उसकी ज्यादा। The same way, इसी तरह the से Bible says, परमेश्वर का who वचन कहता है, meditate, who read the Bible परमेश्वर day के and वचन night, पे ध्यान लगाता है सुबह शाम, and who reading जो meditation, पढ़ता है ध्यान लगाता that person be like a tree planted by the है, वो riverside, इंसान एक पेड़ उस पेड़ के समान है जो नदी के पास लगाया गया है, and that person will be grow powerfully. और वो इंसान बहुत ज्यादा बड़ा है, That person will never dry वो up. कभी सूखेगा नहीं। When the sun heat comes, जब धूप आएगी भी, what is our sun heat? हमारी धूप क्या है? When the temptation मतलब comes, परेशानी, when the challenges come, चुनौतियां आएंगी, when the trouble comes, जब when मुश्किलें the आएंगी, Satan come and जब hit, शैतान आपके जीवन में आएगा, that person who read the Bible लेकिन will जो never इंसान die. परमेश्वर का वचन पे ध्यान लगाता है वो सूखा नहीं पड़ेगा, And खराब that नहीं होगा, person who read every day, जो हर रोज पढ़ता है day and night, सुबह शाम, Satan will never push him शैतान down. उसे तोड़ नहीं पाएगा, And Satan will never cast them उसे down. गिरा भी नहीं पाएगा, And that person will be staying वो खड़ा रहेगा like a tree planted by the उस streams of the पेड़ के water. समान जो नदी के पास लगाया है, And every season bringing fruit. और हर ऋतु में ही वो फल लेकर And आएगा। that person who meditate, who read the Bible every day, जो हर रोज ध्यान लगाता है they will be a fruitful वो हमेशा फलेगा and blessing. और आशीष लाएगा। And then Bible says, verse 3, और तीसरे वचन में क्या लिखा है whatever they does, कि they जो will be कुछ भी prosper करेगा and successful. वो हमेशा सफल होगा। Whatever you do, आप जो कुछ भी करेंगे, if you read the Bible every day, अगर आप हर रोज बाइबल पढ़ते you हैं, will be successful, आप सफल होंगे you will be prosper. और उन्नति पाएंगे। Today many people looking for आज success बहुत सारे लोग सफलता ढूंढ रहे हैं, with competition, ढूंढ रहे हैं, with study, पढ़ाई कर रहे हैं, with PhD, पीएचडी कर रहे हैं, so many money expenses. बहुत पैसा लगा के पढ़ाई कर रहे They're हैं, looking for success. सोच रहे हैं ज्यादा They're पढ़ेंगे looking for तो prosperity. सफल हो जाएंगे, उन्नति पालेंगे। Bible is giving us here direction. बाइबल क्या बता रही है? How you need to become ये success. सफलता कैसे पानी है? Many students come to me. बहुत सारे बच्चे Oh, पास्टर के pastor, पास आते I हैं, want to become a कि success. पास्टर मुझे सफलता पाने में क्या करूं? I want to become a success in my study. मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करना I है, want to become a success in my career. मुझे अपने करियर में बहुत पैसा I कमाना want है, to become a prime minister president. मुझे प्रधानमंत्री जैसा बड़ा बनना है। Then God is teaching here. परमेश्वर क्या बता रहे If हैं? you
want to become a success, अगर आपको सफलता पानी है, children, बच्चों, if you want to become a success in अगर life, आपको सफलता पानी है, the Bible says, बाइबल बताती है, we need to read the Bible, बाइबल पढ़े follow, और इसके पर चले, believe in Jesus. विश्वास You करें, will be successful. आप सफल जरूर You होंगे, will be prosper. आप जरूर उन्नति पाएंगे। Not reading just left, ऐसा नहीं कि बस पढ़ा और बंद कर दिया, but you need to read. इसको पढ़ के जीवन में उतारना जरूरी है, You need to apply. अपने जीवन में You उतारें, need to obey. इसमें चलना जरूरी है। How you need to obey? कैसे चलेंगे इसके पीछे? God says, परमेश्वर कहता do है not be worried. कि चिंता Any मत करो, situation, pray. कोई भी परिस्थिति आए तो प्रार्थना करो, Any temptation come, run away. कोई मुश्किल आए तो वहाँ पे प्रार्थना करो, Don't worship idol. मूर्तियों के रास्ते मत Don't do छोड़ो, wrong. गलत काम मत So करो। all these things, when you follow the right thing, जब भी आप सही काम करोगे, when the time comes, जब सही समय you आएगा, will be successful. आप सफलता पाएंगे। Whatever you are doing. जो भी आप कर रहे हैं उसी में, So that is the thing. वही चीज है। So when you become a Christian when you read the Bible, तो मसीही वही है जो बाइबल पढ़ता है, because the Bible क्योंकि बाइबल is for our वो success. हमारी सफलता के लिए, Bible is a teaching. ये पढ़ाई है एक तरह की, This from here we teach. From here we learn. इससे ही हम सीखते हैं, And the Bible is the healer. ये चंगाई भी देती है, And the God's word is the lamp और परमेश्वर का वचन एक लालटेन के समान है, to our feet, हमारे जगह पे रोशनी light देता to है, our path. हमें रोशनी देता है हमारे हर रास्ते And में, the word of God is a sword और एक तलवार के समान भी है to kill the Satan. कि हम शैतान के कार्यों को Cut नष्ट the कर पाए, Satan. शैतान को तोड़ पाए। That's what the Bible says. ये भी बाइबल बताता है, And the word of God परमेश्वर का वचन is the source of everything. और हर एक चीज का स्रोत है। That is why इसलिए when you read the Bible, जब बाइबल पढ़ते हैं, Satan cannot able to kill you. शैतान अपने जीवन में कुछ So नहीं कर if you सकता। are a Christian, अगर आप मसीह हैं, read the Bible बाइबल पढ़ें every day, हर रोज, all the days of your life, आपके जीवन के हर एक दिन, not only one day, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया रविवार को हो all गया, the days of my हर life. रोज। And when I read, और जब पढ़ते I हैं need to follow. तो The इससे भी second चलना thing, जरूरी है। if you are a Christian, अगर आप मसीह हैं, what we need to do? हमें क्या करना है? Pray. प्रार्थना करनी। Reading the Bible, पहली चीज बाइबल का वचन पढ़ना और दूसरी चीज प्रार्थना करना। pray प्रार्थना is very important. बहुत जरूरी है। What is the prayer? प्रार्थना का क्या मतलब है? Many people say, I don't know how to pray. बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर में प्रार्थना करनी नहीं आती। Pray प्रार्थना मतलब means communication. परमेश्वर से बात करना। You are talking to your mother, आप father. पापा से भी तो You are बात talking to करते हो, your children. अपने बच्चों से You बात are करते talking to हो, your friend. अपने दोस्तों I से am बात talking करते to you now. हो। ये जैसे पास्टर आपसे बात कर रही है, Same way. इसी तरह से Pray is like that. आप परमेश्वर से बात करो। God wants to talk to you all the परमेश्वर time. आपसे हर बार बात करना God चाहते हैं। wants you to talk to Him all the time. परमेश्वर चाहते हैं कि आप मुझसे हमेशा बात Because करें, you didn't talk to God, क्योंकि आप परमेश्वर से बात नहीं करते, then Satan will talk to तो you. शैतान आपसे बात करते हैं, Then you are talking to the Satan. अब शैतान से बात करने लग जाते That हैं। is why God said, pray without ceasing. तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता What है is that? बिना हमेशा प्रार्थना करते हैं। Down to the Philippians. फिलिपियों की किताब No, First Thessalonians. पहले थिस्सलुनीकियों की 5:17 Let us read together. First Thessalonians, chapter 5. First Thessalonians, chapter 5. पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 17 वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, 6 and 7. सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18 हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। See, the Bible said, pray without ceasing. परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा प्रार्थना करो, Pray without stop. बिना रुके प्रार्थना करते रहो। Then you will say, I need to go to job, I need cooking, I need to take care of my children. तीसरे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें चिंता होती है कि हमें घर में काम करना है, नौकरी करनी है, बच्चों Then you will को say, how can I pray always? तो आप कहेंगे कि मैं कैसे हमेशा प्रार्थना But the करूं? Bible said, pray without ceasing. और बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करते रहो। That means इसका मतलब you are always talking to your children, हमेशा अपने बच्चों से बात you are करते always हैं, talking to your friends, अपने दोस्तों से you बात are करते always हैं, talking to your husband, wife, अपने पति पत्नी और बच्चों से बात कर you रहे are हो, always talking to the things of the world. दुनिया की तो बात कर रहे हो। The same way, इसी तरह pray is the communication with God, परमेश्वर का talking with वचन कहते God. हैं कि परमेश्वर से बात करते You हो। can talk anywhere, आप कहीं भी परमेश्वर से बात in करते हो, your heart. अपने दिल The में, same way you're talking to your friends, family, children, brother, sister, wife, husband and wife. जैसे आप अपने घर वालों से, पति पत्नी से, दोस्तों से बात करते So हो। if you are a Christian, अगर आप एक मसीही God हैं, wants you to always परमेश्वर communicate. चाहते हैं कि हम हमेशा उनसे बात करते रहें। And see, when we always talking, तो हमेशा हम बात करते हैं, we love one हम another. एक दूसरे प्रेम करते We हैं, care for one एक दूसरे की another. मदद करते We हैं, know for each एक दूसरे other. का ख्याल रखते हैं, समझते हैं। But if I never talk to you, लेकिन अगर मैं आपसे बात ही ना करूं, how I will know that what you तो want? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए? How you know that pastor wants you अगर want? आपको कैसे पता चलेगा कि पास में क्या चाहिए? So when we talk, when we close, तो जब हम पास में करीब आते the हैं, more you talk, जितना
जितना बात करते the हैं more you love. उतना ही प्रेम करते हैं। The more you communicate, जितनी आप बात करते the हैं more you understand the उतना person. ही सामने वाले को समझते हैं। The same way, इसी तरह the से more you talk to God, जितना परमेश्वर से बात the करते more the Lord will talk to हैं you. उतना ही परमेश्वर आपसे बात The more you talk to God, जितना the परमेश्वर से more बात करते God will close to you. हैं उतने परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। And God knows everything. परमेश्वर को सब कुछ पता है आपके बारे When में। you talk to Him, जब उनसे बात करते हैं, when you share to Him, जब उनसे कुछ चीजें बांटते हैं, okay, He is God knows everything. He is a God. हम कहते हैं हाँ परमेश्वर को तो सब कुछ पता ही But है ना, He wants us to talk. पर फिर भी वो चाहते हैं कि He हम is उनसे our बात करें, Father. क्योंकि वो हमारे पिता He हैं, is our best friend. वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। Yes, yesterday night I was in the wedding in my dream. पास्टर साहब ने सपने में पास्टर की शादी हो रही थी। In a wedding gown nicely. पास्टर बड़े सुंदर से व्हाइट गाउन में थी। I was so happy. पास्टर बहुत खुश थी। Then I saw my husband also. हस्बैंड को भी देखा, But I didn't see this one my husband. पर वैसा दुनिया में नहीं दिखा अभी तक। But I come to realize पर पास्टर को पता चला God has already married me. कि पास्टर से परमेश्वर ने शादी कर ली I है। am the wife of God. हम परमेश्वर के दूल्हे God हैं। is my husband. परमेश्वर पास्टर के दूल्हे हैं। God is my best friend. उनके अच्छे मित्र हैं। God is my mother, father. उनके माता और पिता भी हैं। God is my brother, sister. उनकी भाई और बहन भी हैं। God is everything to me. हर एक चीज है। That is how God wants और us. परमेश्वर चाहते भी हैं। In the times of God is everything. परमेश्वर सब कुछ है। God is your husband. आपके God पति, is your best friend. आपके अच्छे मित्र, God is your brother, sister. आपके भाई बहन, God is your cousin. आपके God is your relative. आपके रिश्तेदार, God is everything for परमेश्वर you. सब कुछ है। And God is your God. और वो आपके प्रभु भी हैं। That is why God said pray without इसलिए ceasing. परमेश्वर कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो। Because if you stop praying, कि अगर आपने प्रार्थना करनी बंद Satan कर will दी, attack you. तो शैतान आप पे Satan आक्रमण will come and talk to you. आपको आपसे बात करेगा And you will be hearing the voice of the Satan. और आप परमेश्वर की And आवाज you will सुनेंगे follow. और आप उनके पीछे चलो। See, when you stop praying, अगर आप प्रार्थना करना when you बंद कर stop देते reading हो, Bible, अगर आप बाइबल when पढ़ना you छोड़ didn't देते come हो, to church, आप चर्च नहीं आते हो, our heart, our mind हमारा दिल हमारा दिमाग go to the things of the हम world. दुनिया की बातें सोचने लग जाते हैं, You are talking nonsense thing. हम फालतू की बातें करने लग जाते हैं And people are speaking evil, not negative. और लोग क्या नकारात्मक बातें बोलते हैं, वो सोचने लग जाते हैं। And when you hear all these things, और जब ये चीज सुनते हो you become tired. और आप थक जाते हो, You become sad. हम दुखी हो जाते हैं And you become sorrow. और हमें दुख होता है And now tension start. और फिर टेंशन होने लग जाती Now worry start. है, परेशानी आ जाती है That is how the Satan और works. शैतान काफी But है। when you read the Bible, लेकिन जब बाइबल when पढ़ते you obey, जब वचन when पढ़ते you हैं, pray, जब प्रार्थना you करते got power, हैं, आपको सामर्थ्य you मिलता है, got healing, चंगाई मिलती you है, got hope, उम्मीद मिलती you है, got strength, सामर्थ्य मिलता है, you got peace, आपको शांति, you got joy. आनंद मिलता है। How many people say, I pray to God, I read Bible, I become sad sorrow? कितने लोग कहते हैं कि यार मैंने बाइबल पढ़ाई के लिए मैं बहुत ही दुखी हुआ पढ़कर, कितने लोग कहते हैं? कोई When नहीं we कहते। read Bible, जब बाइबल पढ़ते we हैं are blessed. हम आशीषित होते हैं, When we read Bible, जब बाइबल पढ़ते we हैं got peace. हमें शांति When मिलती we है, listen to the word of जब God, परमेश्वर का वचन सुनते हैं we got strength, हमें we सामर्थ्य got मिलता है, energy, हमें शक्ति we मिलती got है, positive heart. हम दिमाग हमारा सकारात्मक सोच हो जाती है। But when we talk people, लेकिन हम लोगों से when कपड़े we मारते read हैं other books, और जब दूसरी किताबें पढ़ते हैं there is no strength, तो शांति नहीं there is मिलती, no peace, शांति नहीं मिलती, full of joy, full of sorrow, सिर्फ pain. नकारात्मक दुखी की बातें समझ आती When है। you talk people, जब लोगों से बात करते हैं people will pull you वो down. हमेशा आपके बारे में बुरी बातें बोलते हैं, People will talk you, oh, you are button, you are nothing, you are this and that. वो आपके बारे में गलत चीजें बोलेंगे। But when you talk to लेकिन God, जब परमेश्वर से बात God करते हैं never say to वो you, हमेशा आपसे अच्छी oh, you बात are foolish son. वो ये नहीं बोलेंगे तू इतना और you are बेवकूफ है, better. अरे तू बेवकूफ है, And God never say you are Satan. अरे तू तो शैतान है। But sometimes children, mother, you, people children, telling your children, oh तो Satan. हमें ध्यान रखने की जरूरत है। कभी-कभी आजकल माताएं अपने बच्चों को शैतान बोल देती हैं। Oh, this is very अरे naughty. बड़ा शैतान है ये नहीं बोलना चाहिए। And then also you say to your children, sometimes you can't do nothing. और हम कभी ये भी बोलते हैं अरे तू कुछ नहीं कर सकता। But God never say. पर परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहते। Even though we do wrong, चाहे हम गलत भी करते हैं, even though you committing sin, हम पाप भी करते हैं, still God love us. फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। God say, come, परमेश्वर फिर भी कहते हैं don't आओ do again. दोबारा मत I करना, will forgive you. मैं तुझे माफ कर दूंगा। Sometimes children obey, I will not forgive you, no. कभी बच्चे गलती करते हैं हम नहीं हम तुझे माफ करेंगे Or तुझे। sometimes husband and wife fighting, no, I will not और forgive. पति पत्नी लड़े थे नहीं मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। And our brother sister relative for your friend, और हमारे रिश्ते में लड़ाई करते हैं तभी how मैं माफ much I नहीं need to forgive them? अरे तो कब तक माफ करता रहूं? And now it's enough. बहुत हो गया। We used to do like हम that. ऐसा कहते हैं। How much we have committed sin? हमने कितने ही माफ पाप किया। God say, come unto me. तो परमेश्वर फिर भी कहते I हैं will forgive your मैं sin. तुझे माफ कर दूंगा। I will water your मैं तुझे sin. साफ कर दूंगा। I will cleanse you. मैं तुझे साफ कर दूंगा। Isaiah chapter 1 verse 18. यशायाह के 1:18
18 I will make you as a whiter as the तो snow. मैं तुम्हें बर्फ हिम के समान सफेद कर दूंगा। So when you come to God, जब परमेश्वर के पास आते हैं, God always never rejects. परमेश्वर कभी हमें नकारते God नहीं है, never condemn you. कभी हमें नकारते नहीं। But God doesn't want us to sin. पर परमेश्वर ये नहीं चाहते God कि doesn't हम want us to go away from वो Him. नहीं चाहते कि हम उनसे दूर हो जाएं। And if you are a Christian, और अगर आप एक मसीही you हैं, always need to pray to God. हमेशा को प्रार्थना करनी Because the चाहिए। prayer, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा everything that you हर pray, एक चीज जो प्रार्थना करते God हैं, always answers. परमेश्वर हमेशा जवाब देता है। Sometimes कभी-कभी some people say God didn't answer my prayer. कभी-कभी लोग कहते हैं परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब नहीं But दिया। Bible never say. लेकिन बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं है। Bible say बाइबल कहता है every prayer that हर you एक make, प्रार्थना जो बना होती है, God answers. परमेश्वर जवाब देता But sometimes है। लेकिन कभी-कभी His answer उनका जवाब will be, some place will be yes, कभी-कभी उनका जवाब हाँ होता है, some place will be no. कभी-कभी ना भी होता You है। ask something हमारा कुछ मांगना that is not good for you, अगर आपके लिए सही नहीं है, then God will say no. तो परमेश्वर की नहीं है, मेरे बच्चे को नहीं देना। Sometimes your children ask something, कभी-कभी अपने बच्चे कुछ मांगते हैं, then you give and you say no, this is not good for कभी-कभी आप child. कहते हैं नहीं नहीं देते, अच्छा नहीं है, Then you नहीं say देना। no, I will not give, this is not तो good. आप बोलते हैं नहीं मेरे को नहीं देना ये। So the same way. इसी तरह से Sometimes you ask God, आप परमेश्वर से मांगते but हैं, God knows the best thing for you. पर परमेश्वर को सबसे अच्छी He चीज लगता answers है, everything. वो हर एक चीज का But जवाब sometimes you देते हैं, didn't receive लेकिन कभी आपको नहीं मिलता, because He knows that that is not good for you. कभी-कभी उन्हें पता है कि वो चीज आपके लिए सही नहीं है, Sometimes you receive because that is good for you. कभी-कभी आपको मिलता है क्योंकि वो So He सही will होती है। every answer. हर एक प्रार्थना का जवाब आता है, But to give that answer, लेकिन वो जवाब पास नहीं है। sometimes He will say yes. कभी-कभी वो हाँ कहेंगे, Sometimes He will say no. हमें ना के लिए भी And He तैयार will रहना not do what चाहिए you ask. कि जो Even though He answered, चाहे वो जवाब देते हैं because that is not good for you. क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, इसलिए वो ना कर देते हैं। But God, every prayer that you make, और जो भी प्रार्थना आप करते हैं He answers. उसका जवाब तो जरूर आता है, Don't doubt. तो परमेश्वर पे शक ना करें, God answers. जवाब So आता if है। you are a तो Christian, अगर एक मसीही है read the Bible. तो बाइबल पढ़े, Pray every प्रार्थना day, करें, every moment. हर समय You talk to God. परमेश्वर से बात करें, I talk to God every time. खास कर हमेशा परमेश्वर से बात In the करें, rickshaw, in the bus. रिक्शे में भी, बस में I भी। did pray, oh Lord Jesus, help me. No. ये नहीं कि रोड रोड में चिल्ला दिया अरे यीशु मसीह मेरी मदद करो, In your heart, लेकिन अपने दिल में, wherever you go. जहाँ पर भी आप जाएं, Talk in your heart to God. अपने दिल में परमेश्वर से बात करते रहे। Sometimes I sit in the rickshaw, I singing with God. कई बार मैं रिक्शे में बैठी तो परमेश्वर के भजन गाती है, Sometimes I meditate the word that I read. कभी-कभी ध्यान लगाती है वचन पे, So that is how we communicate with तो God. परमेश्वर से हम अलग-अलग तरीके से बात कर सकते हैं। So that is why the Bible saying, if you do that, इसलिए बाइबल बताती है Satan कि ऐसा has no करेंगे room to enter. तो शैतान को हम रास्ता ही नहीं देंगे घुसने But का। if you stop talking to लेकिन God, अगर परमेश्वर से बात करनी बंद कर Satan देंगे will talk to you तो now. शैतान आपसे बात करने Then लग you will जाएगा, hear तो आप उसकी सुनने लग negative जाएंगे, thought, नकारात्मक negative बातें, thinking, बुरी-बुरी बातें, sad, दुखी होने लग जाएंगे, गुस्सा आने लग जाएगा, what yesterday evil thing अरे done. कल क्या गलत काम हो सकता है Satan will bring into your heart शैतान and दिमाग में डालेगा, mind. उसके You मेरे will बारे में ऐसे thinking, बोला, you ऐसे will कहा। thinking that person. You will thinking that your wife, your husband, your children, what they did to आपके you. पति पत्नी आपने क्या गलत किया वही सोचते रहेंगे हमेशा। So the Satan will bring into your शैतान कोई memory, नकारात्मक चीज आपके दिमाग में डालता रहेगा and you will become sad. और आप फिर दुखी हो जाएंगे सोच So सोच the Bible says meditate the word of बाइबल God. कहती है परमेश्वर का वचन हर समय सोचते Keep in रहो, your heart the word of हर God. समय अपने दिल में रखें, And always talk to हर God. समय परमेश्वर से बात करें, Then those things will not talk to ताकि you. वो चीजें शैतान की Then बातें आपसे बात those करनी things बंद will हो not जाएंगी come to you. और गलत बातें आपके दिमाग में नहीं There आएंगी will be always peace. और हमेशा के जीवन में And you शांति will always रहेगी, think positive. हमेशा अच्छा सोचें, And you will never down. आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। Amen. आमीन। And then also the word of God और says, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है and if you are a Christian, अगर आप एक मसीही हैं you need to be always connected with the Holy Spirit. आपको हमेशा पवित्र आत्मा से जुड़े रहना जरूरी You should not do what you want. है। आपको जो करना है वो ना We करें, should not do our will. अपनी मर्जी के अनुसार मत We चलें, should do the will of God. आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। See, Jesus Christ come into this world. आप देखिए यीशु मसीह दुनिया में आए Just you and I. आपके और मेरे लिए, Just like you and I. जैसे आप और मैं हूँ Jesus वैसे आए। also go through sickness, pain, उनके जीवन में परेशानियां आई, problem, persecution. बीमारियां आई, तड़पाया गया, परिवार ने नकार दिया। Jesus is not living in the world like God. ऐसा नहीं कि राजा की तरह दुनिया में और जीते रहे, ऐसा नहीं हुआ। 2000 years before, 2000 साल पहले Jesus was living in the place of Nazareth. यीशु नाजरत जगह पर रहे। That is the place of Israel. That is the इजराइल के Nazareth. अंदर नाजरत शहर है। Now we are in India, in the life जैसे of भारत में अब दिल्ली में रह रहे we हैं, are living. Jesus was in the Israel. He was यीशु born. इजराइल में His village he brought up in Nazareth. वो नाजरत में पैदा हुए And that same like village gone. और गांव में रहे। He go through pain. उनके जीवन में भी He दुख go हुआ, through sorrow. दुख हुआ, He परेशानी go through आई, so many challenges in life. बहुत सारी चुनौतियां आई, He go through temptation. बहुत सारी चुनौतियां That आई। is what the Bible says in Matthew chapter 4. मत्ती का सुसमाचार
चौथे दिन When नहीं Jesus था। was taking 40 days उसने fasting, 40 दिन का उपवास किया, Satan come and tempted. शैतान आया उनको ललचाने के लिए। So you see, he's facing what you're facing today. तो उनके जीवन में वही सब बोझ आपके And जीवन में आज many होता है। people deny that Jesus is not God. बहुत सारे लोग कहते हैं When यीशु he परमेश्वर started नहीं his है। ministry, जब उन्होंने अपनी सेविकाएं शुरू की, people were mocking him. लोगों का मजाक उड़ाते People were थे, persecuting उन्हें him. तड़पाते थे, परेशान Even the करते थे। religious leaders, जो धर्मी गुरु थे, Pharisees, Sadducees, they don't फरीसियों like सदूसी Jesus. लोगों ने उनको मजाक उड़ाया। When the people were teaching in the Bible in the synagogue, जब वो मंदिरों में पढ़ाते थे, they didn't believe Jesus. उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। But Jesus never do the will of लेकिन his. यीशु ने कभी लोगों की मर्जी नहीं की, उन्होंने इंसानों की मर्जी नहीं Jesus की, never do his own will. उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चले, He always looked to the Father. उन्हें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार And he always do the will of the Father. हमेशा परमेश्वर की मर्जी का। So if you are a Christian, तो अगर आप एक मसीह हैं, God want you to do the will of God, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी मर्जी के अनुसार not चलें, our will. हमारी मर्जी के अनुसार नहीं। God want to do the will of God. परमेश्वर चाहते हैं And कि then आप also- मर्जी के अनुसार चलें। And then if you are a Christian, तो अगर आप एक मसीह हैं, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, the day that you believe in Jesus जिस दिन Christ, आपने यीशु में विश्वास किया, I उसी will दिन talk to you one day about Holy एक Spirit. दिन हम पवित्र आत्मा के बारे में बताएंगे। And the day that you believe in Jesus, जिस दिन आपने यीशु के बारे में Holy विश्वास किया, Spirit come to you. पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गई। How we believe in Jesus कैसे Christ. हमने यीशु में The विश्वास Holy किया? Spirit convicted पवित्र you आत्मा ने हमें समझाया to believe in Jesus. कि अब यीशु में विश्वास है। And so the day that you believe in तो उस Jesus, दिन जब आपने यीशु में विश्वास किया, you have Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपके And साथ that है। Holy Spirit और वही पवित्र आत्मा will lead you. वो आपके साथ चल That रही है। Holy Spirit वही पवित्र आत्मा will speak to you आपसे बात करती है, आपको सिखाती है and will lead us. और आपको आगे Many लेके people चलती say, है। I didn't have Holy आज Spirit. बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। Yes, the people who didn't believe in Jesus, जो लोग यीशु में विश्वास नहीं करते, उनके पवित्र they आत्मा didn't नहीं है। have Holy Spirit. They didn't have Holy उनके Spirit. पास पवित्र आत्मा नहीं है। But the person, the day that you accepted Jesus लेकिन जिस Christ, इंसान ने यीशु में विश्वास कर लिया एक you बार, have the Holy Spirit. उसके पास पवित्र आत्मा है। There is a reason, there is so many denominations in this world. बहुत सारे वर्ग हैं इस दुनिया में, What I have experienced. लेकिन पास्टर ने One day देखा है I go to the south. कि एक दिन साउथ में गई, We are doing a ministry. वहाँ पे सेविकाएं कर रही थी। Then one church, वहाँ पर एक I चर्च, will not tell the church, उस and we entered to the Pentecostal church. ये वहाँ पर एक पेंटेकोस्टल चर्च में Then they गई, are speaking tongue, blah 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 बहुत blah. लोग भाषा में बोल रहे थे। Then we didn't speak. तो ये लोग नहीं बोले, Then they say to us, उन्होंने इनसे कहा "Oh, you didn't have Holy Spirit." तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, And then they come and pray for us for the Holy Spirit, Holy Spirit. तो उन्होंने पवित्र आत्मा के नाम प्रार्थना करने लगे, पवित्र आत्मा आ जाए, आ जाए, आ जाए। Because we are not speaking, so for them I didn't have Holy Spirit. क्यों पास्टर अनेक भाषा में नहीं बोल रही थी, तो लोगों को लगा कि मैं पवित्र आत्मा नहीं है। Then in my heart, तो पास्टर के दिल में I say no. उन्होंने कहा नहीं, The day that I believe in जिस दिन मैंने Jesus, यीशु में विश्वास I किया, have the Holy Spirit. पवित्र आत्मा है। Bible saying बाइबल कहती है, they are wrong. तो क्या बाइबल गलत है? Then after the prayer, प्रार्थना के बाद how many people receiving Holy Spirit today? उन्होंने बोला कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिली आज? And all my team come. इनकी टीम पूरी They were crying and blah blah. And वो रो रही थी, they are cheering down today. I receive अरे Holy यार Spirit. मुझे पवित्र आत्मा मिल गई। Then my turn come. जो इनकी बारी आई, I took the mic. उन्होंने माइक I लिया, say, उन्होंने कहा today I didn't receive the Holy Spirit. आज मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिली। The day that I believe in Jesus, जिस दिन मैंने यीशु में विश्वास किया था, when I was in Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज में in the month of July, जुलाई के महीने even में, though I born and brought up in Christian मैं family, मसीह परिवार में भी पैदा but I हुई, never accepted Jesus Christ as a personal लेकिन मैंने Savior. यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के Those रूप में days नहीं before अपनाया I था। accepted Jesus Christ, जब तक मैंने नहीं अपनाया था, that time I'm not a Christian. तब मैं एक मसीह नहीं थी। But the people believe that I'm a लेकिन Christian. लोगों को लगता था कि ये मसीह परिवार की है तो मसीह होगी, Those that I also doesn't know. लेकिन इनको यीशु के बारे में पता ही नहीं था। I go to church. ये चर्च तो जाती I थी, listen in Bible. भजन भी सुनती थी, I do everything about the church चर्च activities. के सारे काम भी करती थी, But I never believed that Jesus लेकिन Christ यीशु is को my अपने personal व्यक्तिगत Savior. उद्धारकर्ता के रूप में नहीं अपनाया था। So those that are not a तो Christian. वो मैं मसीह थी ही नहीं। But the day that God convicted me, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने इन्हें अपना प्रकाशन दिया and the day that I accepted Jesus और Christ, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया, उस दिन से I received the Holy Spirit. इन्हें पवित्र आत्मा मिल गई। So the day that you believe in तो Jesus, जिस दिन आपने यीशु में विश्वास किया, that day may be in your house, हो सकता है कि उस दिन आपने घर में that कमरे day में may be बैठे in हो, the church, या चर्च में हो, that day may be in the jungle, या जंगल में हो, that day may be in a business place, या अपने ऑफिस में हो, that day anywhere, आप कहीं पर भी थे, the place that you accept Jesus लेकिन Christ, जहाँ पर आपने यीशु में विश्वास किया, you have the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा मिल गई। Not the speaking tongue you ये नहीं have. कि अन्य भाषा में बोलने लग गए, That person who speak in blah blah that will having the Holy Spirit. तो ये नहीं कि जो अन्य भाषा बोलता है उन्हीं के पास पवित्र आत्मा Only होती that है, person having the Holy Spirit. ऐसा नहीं है। No.
Bible says no. बाइबल तो ऐसा नहीं बताती। Whoever believes बाइबल in कहती है Jesus, कि जो भी यीशु में विश्वास करता है, everyone हर एक who believes, जो विश्वास they करता have है the Holy Spirit. पवित्र आत्मा If को you पाता है। believe in Jesus, अगर आप यीशु में विश्वास you करते have the हैं, Holy Spirit. आपके पास पवित्र Holy आत्मा है, Spirit is inside you. पवित्र आत्मा आपके अंदर है। But the Holy Spirit will give you the gift. The gift will be different. पर पवित्र आत्मा के तोहफे अलग-अलग होते हैं किसी के जीवन Some में। people will speaking in tongues. वो अन्य भाषा में बोलेंगे, Some people will speaking in. Some people will heal, deliver. कई लोग चंगाई देंगे, छुटकारे Some देंगे, people become a pastor. कई लोग पास्टर Some बन people जाएंगे, become an evangelist, कई missionary. इवेंजलिस्ट बन जाएंगे, Some कोई people मिशनरी become बन a जाएंगे, prime minister president. कोई प्रधानमंत्री बन So जाएंगे। all these are the gifts. हर एक के परमेश्वर के तोहफे हैं। But these are not you cannot say that you didn't have the Holy Spirit. लेकिन ये नहीं कि अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलते So तो if आपकी you पवित्र आत्मा नहीं है। say that you believe in जिस Jesus, दिन आप यीशु में you विश्वास have the Holy करते हैं, आपकी Spirit. पवित्र आत्मा है। Amen. आमीन। And then, so don't be confused. तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। And so when you believe in Jesus Christ, तो जब यीशु you में have विश्वास the Holy करें, Spirit. पवित्र आत्मा If के you पास are a है, Christian, अगर आप मसीह you हैं, need to obey the God's will. तो आपको परमेश्वर के वचन पे चलना What जरूरी will है। Holy Spirit talk to you? पवित्र आत्मा आपसे बात God करती है। always speak to us. परमेश्वर हमेशा आपसे बात करता है। How? कैसे? You know. आपको पता है। If you do wrong, अगर आप कुछ गलत करने की सोचते हैं, inside heart, अंदर से आवाज आती है if I telling lie, कि मैं झूठ बोलने वाली my mouth is telling lie, मेरा मुंह झूठ बोलने वाला है, inside me, अंदर से आवाज आएगी। the person saying, क्या आवाज आएगी? you lying. तुम झूठ बोलने वाले हो। Nobody telling me. कोई मुझे बताता नहीं बात Person से। inside me, अंदर से आवाज आती है, you are lying. अरे तुमने झूठ बोल Don't दिया। get lying. झूठ मत बोलो, अच्छी But बात the नहीं। flesh telling lie. लेकिन हमारी देह तो So झूठ बोल the देती है। person who speak, जो इंसान बोलता है, that is the gospel. वो परमेश्वर की The आत्मा person होती who है। speak the truth, जो अच्छी बातें बुलवाती है, that is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा। So when you obey the तो Spirit, जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, then your life will be grown. तो आपका जीवन बढ़ता जाता है। But when you didn't obey, लेकिन जब पवित्र आत्मा के अनुसार then नहीं that चलते, spirit will pull you down. तो आत्मा See, when you're committing sin, जब आप करते हैं, the Holy Spirit inside us, पवित्र आत्मा क्या बोलती है? they are grieved. उसे दुख होता है, They are grieved. उन्हें दुख होता है। But when you do right thing, और जब अच्छा काम करते हो, now when you do what God said, जो परमेश्वर कहता है वो the काम Holy करते हो, Spirit inside us, तो पवित्र आत्मा हमारे they अंदर become happy. वो खुश होती है, They become strong. और मतलब भर जाती है। That is why when you believe in Christ, तो जब यीशु when you विश्वास pray, करते हो, जब प्रार्थना करते हो, and when you read the Bible Bible, पढ़ते see, हो, you become strength. You आपको have सामर्थ्य strength. आ जाता You है, have peace. शांति आती है। Where those things get from? कहाँ से शांति आती है? Those things because the Holy Spirit पवित्र inside, आत्मा देती है, they bring out. तो वो चीजें लेकर आती है। Amen. आमीन। So that if you are a Christian, तो अगर आप एक मसीही हैं, do the will of the Father. परमेश्वर के वचन पे चलें। But if you say I'm a Christian, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मैं but क्रिश्चियन हूँ, if you do whatever you want to लेकिन do, फिर भी अपनी मर्जी you से चल रहे lie, हैं, you drink, आप झूठ बोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, setting people, no, murder, killing, लोगों को खून कर रहे हैं, नकार रहे हैं, they are not a Christian. तो आप मसीह नहीं है And they are not doing the will of the और Father. परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। So when you say that I am a Christian, तो अगर आप कहते हैं कि आप मसीही हैं, you need to do the will of the तो Father. परमेश्वर के There is वचन के something अनुसार I will be little bit चलना more है। fast because this is a kind of teaching. So I want you to know. So and if you are a Christian, तो अगर आप मसीही the हैं, Bible says attend the church. बाइबल कहती है कि चर्च जरूर जाओ। If you are many people say I'm a Christian, they will go to church. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मसीही तो हूँ पर मैं अपना चर्च नहीं Then जाता। how we will grow? तब बढ़ेंगे Why क्या God परमेश्वर is में? giving church? परमेश्वर ने कलीसिया दी क्यों है? Why? क्यों? He giving a church उन्होंने हमें चर्च so दिया that we can come ताकि together, हम सारे मसीह इकट्ठे आए so that you can और grow परमेश्वर में बढ़े, from the knowledge of God. परमेश्वर की समझ में बढ़े। See, today if I didn't teach you, अगर आज पास्टर आपको नहीं सिखाएंगे, if I didn't share to you, आपने बच्चे नहीं बांटेंगे, then how you will तो know? आप कैसे जानेंगे? There is a God-given church, इसने परमेश्वर ने कलीसिया local church. लोकल चर्च दिया। God bring to Christ. परमेश्वर लोगों के पास You believe in Christ. आप मसीह में Then विश्वास करते God हैं, want you to grow परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़े। How? कैसे? in the church. कलीसिया में। That's why if you are a Christian, अगर आप एक मसीही the हैं, Bible says attend the church regularly. तो बाइबल बताती है कि चर्च जरूर जाए रेगुलर। And the church is like, in Christ you might not see, it is invisible. The church might, you didn't see God. हो सकता है कि आपको चर्च के अंदर परमेश्वर ना दिखे, But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है in the church, कि कलीसिया में God is the head. परमेश्वर ही है, And सबसे God is ऊपर the है, head. परमेश्वर हेड है And we are His people. और हम सब उनके लोग हैं। And so when you attending the तो church, जब आप कलीसिया में आते हैं, and if you can able to grow आप बढ़ने का आपको मौका in मिलता the है knowledge of God, परमेश्वर की समझ में, in the presence of God, परमेश्वर की how उपस्थिति you में, grow, कि कैसे बढ़ते how to हैं, read Bible, कैसे बाइबल पढ़नी है, how to understand the word कैसे of वचन को God, समझना how है, to pray, कैसे प्रार्थना how to करनी है, worship. कैसे आराधना All करनी these things where you are है, ये getting, सब चीजें कहाँ
में मिलती You है are eating चीजें? in office. क्या हमें ऑफिस में You मिलती are है? eating in business. क्या हमें व्यापार करने में मिल जाती है चीजें? And if you never go to church, अगर हम चर्च ही नहीं जाएंगे you cannot able to grow. तो आप बढ़ नहीं That पाएंगे is परमेश्वर why, में। if you know that you are a Christian, अगर आपको पता है कि आप मसीही हैं, go to church every day. तो कलीसिया में जरूर जाए हर रोज। Amen. आमीन। Fellowship together. साथ में संगति Do करें। not be neglect the fellowship of परमेश्वर की God. संगति को हल्के में ना लें, Because in the house of क्योंकि God, परमेश्वर के घर में God already teaches. परमेश्वर हमें सिखाते हैं, He making us the way to वे go. हर रोज नया नया चीज सिखाते हैं। Amen. And then another thing, if you are Christian, अगर आप मसीही हैं, love one another. एक दूसरे से प्रेम करें। That is in John chapter 13 verse यूहन्ना 45. 13 के अंदर लिखा है, Love one another. एक दूसरे से प्रेम करें। John chapter 13, okay, pretty fast. I'm going to finish soon. John chapter 13, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय verse 35. 35 वचन। No, John. First John. पहला No, John chapter 13. John chapter 13. Gospel of John 13. Yes. Yeah. Chapter 13, verse 35. 35. 35. यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। Amen. So the Bible says that if you love one another, then you know that you are a disciple of God. तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो ही सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। So who is a believer in Jesus Christ? They are the disciple, follower of तो जो Christ. यीशु के पीछे चलते हैं वो लोगों से प्रेम रखते हैं, वो इनके So चेले। if you know that you are a Christian, तो अगर आपको पता है कि आप मसीही हैं, you need to love one another. आपको दूसरे प्रेम रखने की जरूरत है। If you say that I'm a Christian, अगर आप बोलते हैं you मसीही हूँ hate one और आप उससे another, नफरत करते हैं and you are dividing the class, और आप अलग अलग वर्ग में and लोगों को बांट you देते हैं are untouchability. कि मैं तो पवित्र हूँ, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। No. God love everyone. परमेश्वर हर किसी से प्रेम करते Whether हैं, Hindu, Muslim, चाहे आप हिंदू हो चाहे God मुस्लिम हो, love everyone. परमेश्वर हर किसी से प्रेम The करते हैं। same way, इसी तरह से if you are a Christian, अगर आप एक मसीही हैं, love one एक another, दूसरे से प्रेम करें, help one एक another, दूसरे की मदद करें, bring up one another, एक दूसरे को not उठाएं, to condemn, ये नहीं कि गिराएं, not to pull down, ऐसे नहीं उनको not नकारें, to criticize, ऐसे नहीं दूसरों को not to गलत बोले, condemn, not to reject it, उनको नकारे भी नहीं, but love them. लेकिन प्रेम करें। That is God is love. परमेश्वर प्रेम है, Because of God loved us. और प्रेम के कारण ही That's तो why He died on the अभी cross. तो वो क्रूस पे मारने मर गए, He loved you. वो आपसे He प्रेम took करते your हैं, curse. उन्होंने आपके He श्राप took your ले लिया, sin. आपके पापों को ले He took लिया, your bondage. आपके बंधनों को He ले took लिया, your poverties. आपकी सारी की सारी गरीबी को ले लिया And He set us free और हमें मुक्त कर दिया because of His love. अपने प्रेम के The कारण। same way, इसी तरह से God wants us to love परमेश्वर one. चाहते हैं कि हम भी दूसरे प्रेम He करें। saw the love. उन्होंने प्रेम दिखाया, We also need to show the love. हमें प्रेम दिखाने की जरूरत है। Amen. आमीन। And then also another thing. If you are a Christian, अगर आप मसीही हैं, we need to believe our wholeheartedly. हम अपने पूरे मन से क्या विश्वास कर रहे हैं? God said, love the Lord परमेश्वर कहते with हैं all your heart, with all your mind, परमेश्वर से प्रेम करें अपने पूरे दिल, पूरे मन से, with all your soul. पूरी आत्मा से। Bible says, बाइबल कहती है love God. परमेश्वर से If you are a Christian, अगर आप एक मसीही you हैं, need to love आपको God परमेश्वर से with प्रेम all करने की your जरूरत है, heart, पूरे दिल, with all your mind, पूरे मन, with all your पूरी soul. आत्मा से। Not only 50-50. सिर्फ ये नहीं 50-50%। Some people love God, कई लोग परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, 50% idol. फिर 50% मूर्तियों से प्रेम करते हैं, 50% यीशु से प्रेम That करते is हैं, not. ऐसे नहीं। Bible says, बाइबल कहती है if you are a Christian, अगर आप मसीही हैं, love the Lord परमेश्वर से प्रेम with all करें, your heart, पूरे दिल से, with all your mind, पूरे मन से, with all your soul, पूरी आत्मा से। with all your spirit. Amen. Amen. And if you are a Christian, अगर आप मसीही हैं, what the Bible says, बाइबल क्या बताती है? the circumstances that you are कि facing, आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, the challenges that you are जो facing, चुनौतियाँ हों, should not be pulled down. वो आपको नीचे ना गिराएं। You should be up, आप ऊपर होना चाहिए चुनौतियों के। and you should be, down the circumstances. परेशानियों को आपने अपने नीचे रखना है। You should not say, oh, why I'm not sad, why I have this problem. आपको ये नहीं बोला अरे मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों मैं परेशान That हूँ। things should not pull you down, वो चीजें आपको नीचे ना गिराएं, because you are more powerful. क्योंकि आप परेशानियों से कहीं बढ़कर Now, सामर्थ्य से chapter रहे 8, हैं। verse 19. लूका 10:19 में क्या लिखा God है? said, I have given you all the power and authority मैं तुम्हें सारा अधिकार और सारा सामर्थ्य to दे दिया cast है out the कि demons, तुम शैतान को निकाल to पाओ, heal the sick, बीमारों को चंगा to कर पाओ, destroy the Satan. शैतान के कार्य को नष्ट कर पाओ। God has given us the power. परमेश्वर ने सामर्थ्य दे दिया So है, the problems should not be powering you. तो परेशानियां पर हावी ना हो। You should empower this problem that you are आपके facing. अंदर सामर्थ्य ज्यादा रहना चाहिए। You are more powerful than the problem, the challenges. परेशानियों से बढ़कर है। God has given you the power परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दे to दिया है destroy the Satan, कि आप शैतान का आपको to नष्ट heal करना the है, sick, बीमारों को नष्ट to करना है, cast out the demons. शैतानों को निकाल दो। So the problem
that you're facing, तो परेशानी जो आपके जीवन में है you should not be pulled down, वो आपको नीचे न गिराए, but you should be up. पर आप ऊपर होने And चाहिए, problems will be. परेशानी नीचे होनी चाहिए। Amen. आमीन। Last point. और आखिरी चीज, If you are a Christian, अगर आप मसीही हैं, you should share the gospel. आपको सुसमाचार बांटने की The जरूरत है। Bible says, Matthew chapter 28, verse मत्ती का 19, सुसमाचार 26वां अध्याय 19वां वचन, verse 19, 18. 18 और 19 में, 20 में, We will not read, but you read. Matthew 28, verse 19. मत्ती 28 के 19 और 20 Bible says, all the power in heaven and I have given to you. कि मैंने तुम्हें सारा अधिकार, सारा सामर्थ्य दे दिया Go into the world. कि जाओ दुनिया में, Preach the gospel. सुसमाचार बांटो, Share the gospel. सुसमाचार को बांटो। If you are a Christian, अगर तुम मसीही हो, share your testimony. अपनी गवाहियों को बांटो। If you don't know how to preach the gospel, अगर आपको ये नहीं पता बाइबल को कैसे पढ़ाना है, share the gospel. Share your testimony. अपनी गवाही को दूसरों के साथ बांटो What God has done. कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया Like है। people will receive, people listen, जब लोग सुनेंगे they will be blessed. तो आशीषित होंगे What God has done. कि परमेश्वर आपके जीवन में God क्या has किया। healed you. परमेश्वर से God मदद has है, delivered you. आपको छुटकारा दे दिया Those है। things share to the people. लोगों से बांटे Oh, I believe in कि Christ. मैंने यीशु में विश्वास I किया, pray to God. मैं प्रार्थना करती हूँ, God giving me money. परमेश्वर ने मुझे पैसा God दिया, giving me help. मेरी मदद करी, And God healed my sickness. चंगाई को ठीक ठीक चंगाई दी। So to share a testimony. अपनी गवाहियों को बांटे। If you don't know how to preach, अगर आपको प्रचार करना नहीं so आता, if you are a Christian, अगर आप मसीही हैं, share the तो gospel. सुसमाचार को बांटे, Share your testimony. अपनी गवाही को बांटे। We should be the witnesses. तो हमेशा हमें परमेश्वर गवाही बनना है। The Bible says, बाइबल बताती we है are the witness. कि हम सब गवाह हैं परमेश्वर के, What you have received. कि जो आपको आज तक मिला है परमेश्वर से। Okay, you receive gospel now. आपको सुसमाचार मिला, Or you receive healing. चंगाई मिली, You just keep quiet. या क्या आप चुप होकर बैठे रहेंगे? No for that. इसलिए नहीं How मिला। you receive gospel? कैसे सुसमाचार मिला How you आपको? come to church? कैसे आप चर्च आए? Some people come and telling you, किसी ने तो आपको आके बताया oh, होगा go to कि church. चलो चर्च चलो। That is why you come to church. तो आप चर्च In में आए। the beginning, शुरुआत में बिल्कुल। who is telling you to believe Jesus किसने Christ? आपको बोला कि यीशु विश्वास करो? And who is sharing their testimony? किसने अपनी गवाही बांटी होगी तो आपने विश्वास किया होगा, You hear. आपने सुना होगा, That is how you come to और Jesus. जब यीशु में विश्वास आपने किया, That is why. इसीलिए If you believe in अगर Christ, आपने विश्वास you need किया, to share to the world आपको लोगों से बांटने की जरूरत है, so that they will believe, ताकि वो भी so विश्वास that they करें, will come to church, वो भी कलीसिया में so आए, that they will believe in वो Christ. विश्वास करें यीशु में। People before you are Hindu, पहले हिंदू थे, some people telling you, कोई लोग आपसे कहते थे oh, go to church, कि चर्च or you जाओ, are having ये sickness, बीमारी थी, or you go and pray in that अगर place, चर्च में जाओ तो प्रार्थना करेंगे तुम चंगे हो or जाओगे, you go and pray for that man and that woman, कि जाओ वो आदमी के पास जाओ प्रार्थना करेंगे तुम चंगे हो and जाओगे, you follow, और आपने ऐसे किया, and you receive. आपको चंगाई मिली, That person is hearing, उस इंसान ने बांटा, that person is healing. उस इंसान से चंगाई मिली, That is we come to know. और इसीलिए हमने यीशु The विश्वास किया। same way. इसी तरह से If you are a Christian, अगर आप एक मसीही हैं, you need to share the testimony. आपको भी अपनी गवाहियों को बांटने की You जरूरत need है। to share the आप gospel सब समाचार को बांटे to the world, दुनिया को, to the outside of the बाहर के church. लोगों को, Tell them to come to अरे church. बोले कलीसिया में आओ, Share your अपनी testimony. गवाही बांटो What God has कि done. परमेश्वर ने क्या Share your किया, family miracle. अपने परिवार के चमत्कार को बांटो कि परमेश्वर ने क्या किया, Then they will be blessed. और आशीषित Now the Holy Spirit और पवित्र आत्मा will convict them. आप उनको बोलेगी Then they will follow. और फिर वो भी आपके पीछे चलेंगे, Amen. That is the Christian. और वही मसीह जीवन। Amen. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह का हैं,
मसीह